We are live now. A very good morning to all of you. And on behalf of R.S. Muley, Dharampet Arts and Commerce College, Mahila Mahavidyalay, Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalay, and Board of Studies in English, I welcome you all to the BA Compulsory English online course. And friends, we have completed Unit 1, and from Unit 2, we have started with the personalities. And today we'll be dealing with Chapter 3, and that is Muhammad Yunus. And for that, we have a very energetic, charismatic, a very talented and young, very devoted and dedicated Professor Dr. Madhvi Mohral with us. It is my pleasure to introduce Dr. Madhvi Mohral to all of you. Madhvi Mohral is Assistant Professor in English at Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalaya, Nagpur, and she has been working there since last 14 years. She has coordinated NAC for 2 terms, and she has published papers in national and international journals. She has presented papers in national and international conferences and seminars, and she is on the Board of Studies in English at RTM Nagpur University. She has edited textbooks prescribed for BA, RTM Nagpur University. So, over to Dr. Madhvi Mohral. Welcome, ma'am. Thank you, madam. Thank you so much. First of all, I would like to express my humble thankfulness to Dr. Urmila Dabir, Chairperson, Board of Studies English, RTM Nagpur University, Nagpur. I'm thankful to Dr. Vandana Bhagadikar, Principal, Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. And a big thank you to Manjushri madam, who is the main pillar of this venture. Thank you so much, madam. A very good morning to all the dear students. Let me share the presentation. I hope my screen is visible. Yes, yes. Thank you, ma'am. In the 2 previous fantastic presentations, we have seen the contributions of Ramchandra Rao Kirloskar, Lakshman Rao Kirloskar, and Sudha Murthy. Continuing with this link, today's presentation focuses on the services rendered by Muhammad Yunus, another dynamic personality who work for the upliftment of the society. A very dynamic personality, Mr. Muhammad Yunus, belongs to Bangladesh. He has come up with the novel notions. He thought that the youngsters should think in a very different way. This is one of the inspirational quotes from Muhammad Yunus, where he says, people should wake up in the morning and say, I'm not a job seeker, I'm a job creator. It is a very novel thought at that particular time when he spoke like this, or he gave this particular thought. He worked on this particular thought throughout his life. According to him, the young generation or the youngster should think in a different way. They should not be the job seeker, they should be job creator. उन्होंने रोजगार की निर्मिति करनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने चाहिए, ना कि रोजगार ढूंढने चाहिए. At that time, when he spoke like this, it was a novel thought. ये नया विचार था समाज के लिए, देश के लिए, particularly एशियन कंट्रीज के लिए ये नया विचार था. इस विचार के साथ मोहम्मद यूनुस ने काम किया, and now he is known as a very wonderful dynamic personality on the international platform. Today we are going to see this personality in detail. Let me say one thing, let me share one thing to you, that most of the portion in this presentation, it has been taken up from the text which is prescribed to you in your textbook.
but a few things they have been taken up from the source of internet also. These are the honors bestowed upon Muhammad Yunus. He is chosen as one of the 25 most influential business persons of past 25 years by Wharton School of Business in Philadelphia. He is ranked as one of the top business 12 leaders among the 60 years of Asian heroes by Time magazine in 2006. He is voted as second on the list of top 100 public intellectuals in an open online poll conducted by Prospect Magazine US and Foreign Policy US in 2008. मोहम्मद यूनुस गत 25 सालों में 25 प्रभावशाली व्यावसायिकों के लिस्ट में वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस इन फिलाडेल्फिया ने उनको जगह दी. उनको 60 सालों में 12 टॉप मोस्ट बिजनेस लीडर्स की लिस्ट में इनको स्थान दिया गया. It was given by Time magazine in 2006. He was voted as second on the list of top 100 top public intellectuals. So पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में जो वर्ल्ड में सर्वे किया गया, ऐसे 100 टॉप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में सेकेंड जगह इनको मिली. These are great honors bestowed upon him by all the prestigious institutions like Wharton School of Business of Philadelphia, then Time magazine से सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि इन बड़े बड़े institutions ने इनको इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा दर्जा दिया. Why those honors were given to him? What was his contribution to the society? What did he do for the sake of society? We will see the contribution of Muhammad Yunus in the coming slides. Before that, let us have an introduction of this personality. Let us have an introduction of Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, he belongs to Bangladesh. जैसे हमने देखा कि रामचंद्र राव किर्लोस्कर, लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, सुधा मूर्ति, they are from Indian soil. But this Muhammad Yunus, this personality, he doesn't belong to India now. He belongs to Bangladesh. He's a Bangladeshi person. He's a social entrepreneur. Entrepreneur माने व्यवसायी. It's a very different term, that is social entrepreneur. Generally, entrepreneurship या business ये personal growth के लिए, personal gain के लिए किया जाता है. लेकिन he is known as a social entrepreneur because whatever the business he chose or whatever the business he did, it was for the betterment of the society. And that's why he is known as a social entrepreneur. एक सामाजिक व्यवसायी के रूप में ये जाने जाते हैं. He is known as a banker, very successful banker. हम देखेंगे आगे जाके कि ग्रामीण बैंक को एक स्क्रैच से शुरू करके, जीरो से शुरू करके कितने बड़े मकाम तक इन्होंने पहुंचाया. And that's why he is known as a very well-known banker. He is known as an author. इन्होंने fiction नहीं लिखा, novels, short stories नहीं लिखे. He wrote non-fiction. Whatever he experimented or whatever he lived, what were his experiences with the common people, with the rural people, with the poor people, he just noted down all those things in a book. And that's why he was an author also. He is an author also. He is an economist. By profession कुछ दिनों तक हम देखेंगे अभी कि कुछ दिनों तक as an economist करके इन्होंने lectureship का काम किया. इनकी पढ़ाई भी उसी क्षेत्र से संबंधित है. He is an economist. He was a civil society leader. एक नागरिक समाज के नेता के रूप में ये जाने जाते हैं because he worked for the betterment of the society. He worked for the poor strata of the society. समाज के निचले वर्ग के लिए, समाज के गरीबों के लिए काम करने वाला ये नागरिक नेता के रूप में जाने जाते हैं. Very successful kind of a civil society leader. He has made his personality, and that's why when we assess this personality, we come to know that Muhammad Yunus, his identity in all these different facets, in all these different roles he has played, the particular very significant role. He belongs to Bangladesh. He's a social entrepreneur. He's a banker. He's an author. He's economist, and he is a civil society leader. Let us have some glimpses of his early life. Childhood कैसे गया? College में थे तो what type of life he lived? It is very important to know the personality from the root, and that's why let us have some glimpses of his early life. He was born on June 28, 1940. Just try to understand this year, 1940, जब भारत को आजादी मिलनी थी, भारत को आजादी नहीं मिली थी, and that's why it was a part of, he was born in 1940 in the village Bathua in Chittagong.
नाउ चिटागोंग इट बिलोंग्स टू बांग्लादेश, लेकिन उस वक्त जब इनका जन्म हुआ तो चिटागोंग ये भारत का ही भाग था। 1947 में भारत को आजादी मिली एंड देन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, दैट पाकिस्तान एंड India, isn't it? Before that, before independence, it belongs to pre-independent era. At that time, it was the part of India, बथुआ। ये चिटागोंग ये बांग्लादेश की एक बड़ी सिटी आज मानी जाती है। उस सिटी में एक छोटा सा गांव था बथुआ नाम का, उस वक्त मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ। After that, even Pakistan also was divided into two countries. 1971 में पाकिस्तान के भी दो पार्ट हुए कि एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान में डिवाइड किया गया, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना गया, और तब बांग्लादेश को खुद का अपना इंडिपेंडेंट राज्य मिला। लेकिन उस वक्त जब मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ तो इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का ही एक पार्ट था, बथुआ नाम का एक छोटा सा गांव, isn't it? And that's why the childhood he lived, it was from a very common strata. जैसे हमारा आपका बचपन जाता है वैसा ही बचपन मोहम्मद यूनुस का भी गया। It was a very common kind of background he lived. His father was a jeweler, पापा ज्वेलर थे। Family moved to Chittagong when Yunus was 4 years old. जब यूनुस 4 साल के थे तो ये फैमिली चित्तागोंग से, वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू शेयर विथ यू, दैट ये चित्तागोंग पहले चत्तोग्राम से जाना जाता था। चत्तोग्राम, इट इज अ नेम, प्रीवियस नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर विलेज चत्तोग्राम। ये भारत का जब चित्तागोंग ये पार्ट था तो ये चत्तोग्राम के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन इट वाज नोन एज चित्तागोंग। ये फैमिली जब मोहम्मद यूनुस 4 साल के थे तो दिस फैमिली मूव टू चित्तागोंग, बथुआ से चित्तागोंग शिफ्ट हो गए, सिटी प्लेस में शिफ्ट हो गए व्हेन ही वाज 4 years old. It was a turbulent period, especially after his mother was afflicted due to psychological illness. उनके जीवन का ये डिस्टर्ब काइंड ऑफ पीरियड था क्योंकि मदर, जो माँ इनकी थी, शी वॉज अ रोल मॉडल ऑफ हिम, इनकी रोल मॉडल थी। जनरली बचपन में छोटे बच्चों के माँ और पापा रोल मॉडल होते हैं, वैसे मोहम्मद यूनुस की भी माँ उनके लिए रोल मॉडल थी। एंड शी वॉज अफ्लिक्टेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल इलनेस, उस मानसिक प्रॉब्लम्स उनको था, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज अ डिस्टर्ब्ड पीरियड ऑफ हिज लाइफ, डिस्टर्ब फेज ऑफ हिज लाइफ. It was a turbulent period, especially after his mother was afflicted due to psychological illness. His mother was his role model because she was a woman who helped anyone that knocked on their door. माँ इतनी जनरस थी, इतनी काइंड थी कि कोई भी अगर दरवाजे पे आता था और वो पर्सन अगर नीडी होता था, जरूरती होता था, तो उस व्यक्ति को मदद करने के लिए शी वॉज ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहती थी। ये सब बचपन में मोहम्मद यूनुस ने देखा, एंड दैट्स व्हाई हिज मदर वाज हिज रोल मॉडल, उनकी रोल मॉडल मदर थी। ये संस्कार बचपन से ही बच्चों में आते हैं, वैसे यही संस्कार लेके मोहम्मद यूनुस बड़े हुए, और आगे जाके हम देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ चेरिस्मेटिक वर्क or great works were done by Muhammad Yunus for the betterment of the society. His mother was his role model because she was a woman who helped anyone that knocked on their door. He developed interest in Boy Scouts. कुछ दिनों के बाद स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद बॉय स्काउट्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था ना। व्हाट इज बॉय स्काउट्स? जैसे अभी आपके कॉलेजेस में यू पार्टिसिपेट इन एनएसएस एक्टिविटीज, इन एनसीसी एक्टिविटीज विद द मोटो नॉट मी बट यू, इस मोटो के साथ, वेयर द वैल्यूज टू वर्क फॉर द सोसाइटी that has been imbibed among the young generation में ये वैल्यू डालने के लिए एनएसएस जैसे, एनसीसी जैसे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। उसी तरह से स्कूल में बॉय स्काउट तरह के प्रोग्राम रन किए जाते थे, so that the character building will be possible. To give value education to the students, these kind of programs were run in various colleges, various schools. छोटे छोटे स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स रन किए जाते थे, so that मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन बच्चों को मिले, बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग हो। इस एम को रख के बॉय स्काउट्स प्रोग्राम्स स्कूल में रन किए जाते थे। He developed his interest in that boy scout. स्कूल में जब जाते थे तो बॉय स्काउट में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड ही जॉइंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। After that, in 1955, he traveled to Canada to attend Jamboree. Now, what is Jamboree? Jamboree is an international meeting of Boy Scout. Boy Scout की इंटरनेशनल मीटिंग है। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए he went to Canada. कनाडा को गए और कनाडा को जाम्बोरी में पार्टिसिपेट इन्होंने किया। इंटरनेशनल बॉय स्काउट के मीट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया।
He was a bright student in the school. स्कूल के बहुत गिने चुने ब्राइट स्कूलों में से ये गिने जाते थे. It is mentioned in your text that he secured 16th position among 39,000 students in Pakistan. पाकिस्तान के 39,000 स्टूडेंट्स में से जब मेरिट लिस्ट निकाली गई, एग्जाम हुए, तो उन एग्जाम में से इन्होंने 16वां पोजीशन हासिल किया. इट शोज दैट ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. ही वाज अ वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट इन हिज क्लास. He studied in Dhaka University, Pakistan. After that, he received his BA and MA degree from the Dhaka University that belongs to Pakistan. This is the educational and professional milestones of Muhammad Yunus. After his schooling, after his college education, he worked as a research assistant in Chittagong. Chittagong में ही research assistant के नाते काम करने लगे. He worked there for quite a long time. Then he worked as a lecturer in economics at Chittagong College. Chittagong College में ही lecturer करके join हुए, वहीं पे काम करने लगे, वहीं पे व्यवसाय का प्रारंभ किया. व्यवसाय मैंने he started his profession from Chittagong University. He received Fulbright scholarship to study economics at Vanderbilt University. अब यहीं पे इकोनॉमिक्स का एज अ लेक्चरर काम करते करते he applied for the scholarship in Vanderbilt University. It is a private university in Nashville. Nashville की ये private university है. Nashville, it is there in US. US का एक part है. वहाँ पे एक private university में इन्होंने scholarship के लिए apply किया. He got the scholarship. He received Fulbright scholarship to study economics at Vanderbilt University. He accepted that and he started his studies. वहाँ पे अपना study करना शुरू कर दिया. Then he completed his PhD in economics. उसके बाद इकोनॉमिक्स में यूएस में ही अपना PhD भी किया, अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया. He got that degree. He became Dr. Muhammad Yunus after completing his PhD. Completed his PhD in economics. Then he started working as an assistant professor of economics at Middle Tennessee State University. यूएस में ही टेनेसी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स करके जॉब करना शुरू किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेर वेरी हाई. बहुत अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था. ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, है ना, रिसर्च में बहुत ब्राइट थे. एंड दैट्स व्हाई ही अचीव्ड ऑल दोज सक्सेस in his educational life. Worked as assistant professor of economics at Middle Tennessee State University from 1969 to 1972. यहाँ तक का मोहम्मद यूनुस का लाइफ, इट वाज वेरी सेटल्ड. बहुत अच्छा, बहुत सेटल्ड तरह का लाइफ था कि जहाँ पे हर कदम पे इनको सक्सेस मिला. He achieved success, he got success, whatever he did. एजुकेशनल इनका प्रोफाइल जो है, इट इज वेरी गुड, वेरी ब्राइट, वी कैन सी. लेकिन यहाँ से इन 1972 he returned to Bangladesh and joined Chittagong University as head department of English. It is not so easy. When he came back to Bangladesh in 1972, 1940 में जन्म हुआ, तो 1972 he was about 32 years of age. ये एक अच्छा सेटल लाइफ यूएस में, कि जहाँ ऑनरेबल प्रोफेशन है, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कर रहे थे, अच्छा अर्निंग था, अच्छा पैसे कमा रहे थे, एक सुख सुविधा वाली लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो सब छोड़ के ही केम बैक टू बांग्लादेश. He returned to Bangladesh and he joined Chittagong University as head department of English. Chittagong University में वापस आके उन्होंने head department of economics का post accept किया. Why? Because at that particular time, his country at that particular time, Bangladesh was separated from Pakistan. पाकिस्तान के दो भाग हो चुके थे और बांग्लादेश को अपना खुद का एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था. And that's why it was the need of the nation and the nation was calling to him, and he understood the necessity of the nation. He understood the call of the nation and he came back to his own motherland. There were some reason, because that was a very crucial time for Bangladesh. It was a very difficult time for Bangladesh. Bangladesh के लिए ये बहुत difficult time था. बांग्लादेश को क्रीम चाहिए था. बांग्लादेश को जो settled लोग हैं उनकी मदद चाहिए थी, because Bangladesh was passing from a very crucial stage of life, of its existence. And that's why it needed the support of all the qualified, talented, sensitive people of its country. He realized it. Muhammad Yunus realized it कि अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है. I have to go back to my country. And he returned to his country. अपने देश में वापस आए. What was the emergency? क्यों वापस आए? There are some reasons. Here are some reasons. It was a national emergency.
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्टेड इन 1971. 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ. बांग्लादेश स्वतंत्र होने के लिए देश का युद्ध शुरू हुआ. And it lasted for 9 months. 9 महीने ये वॉर चला. See, when the warlike conditions are there, faced by any nation, progress is not possible for that particular nation. उस नेशन की, जो नेशन युद्ध में पार्टिसिपेट करता है या युद्ध लड़ता है, उस नेशन की युद्ध करते समय और युद्ध के कुछ साल तक किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता. The economic condition of the nation, it gets disturbed. The political stability, it gets disturbed. The social life, it gets disturbed. Family life of the people, it gets disturbed. Because पूरा focus जो nation का रहता है, that is concentrated on the front. वो front पे concentrate किया जाता है. इसलिए आर्थिक स्थैर्य वहाँ पे नहीं रहता, political स्थैर्य वहाँ पे नहीं रहता, social यानी सामाजिक स्थैर्य nation में नहीं रहता. And that's why the people of the country, the masses of the country, even the classes of the country, they face great disturbance. पूरा country disturb हो जाता है. ये disturbance वाली condition जो थी बांग्लादेश ने 1971 में experience की. And that's why एक तो पहले ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब शुरू हुआ तो उसके कुछ ही सालों पहले पाकिस्तान को अपना स्वतंत्र देश का दर्जा मिला था. इट वॉज डिवाइडेड इनटू वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान. इसलिए एक राष्ट्र को पूरा खड़ा होने के लिए जो वक्त लगता है वो वक्त मिला ही नहीं था. उसमें से बांग्लादेश ने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व निकाल लिया 1971 में. इसलिए इट वॉज जस्ट अ न्यूली बॉर्न काइंड ऑफ अ स्टेट, बहुत न्यूली बॉर्न काइंड ऑफ अ नेशन, छोटे से नेशन के रूप में बांग्लादेश उभर रहा था. एंड दैट्स व्हाई the country was completely disturbed. हर अंग से ये country disturbed थी. Bangladesh Liberation War started in 1971. It was 9-month war. 9 month बहुत होते हैं war लड़ने के लिए. जैसे मैंने कहा कि हर रूप से, हर level से राष्ट्र disturb हो जाता है जब war लड़ा जाता है. But it resulted into एक पाकिस्तान named Bangladesh. लेकिन जब war लड़ा गया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा गया, स्टार्ट हुआ 1971 में, तो उसका एंड ये हुआ, it resulted into the separation of East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान को अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व मिला और उस देश को बांग्लादेश इस नाम से जाना जाने लगा. बांग्लादेश existed as a separate country, as an independent country in 1971. Now, this has been realized by Muhammad Yunus. At that time, Muhammad Yunus was working in United States of America. 1971 की बात है कि he came back to Bangladesh in 1972. 1972 में वापस आए बांग्लादेश. ये तब की बात है जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्टेड. It was there in 1971. At that time, he was there in US. US में थे as an assistant professor. हमने देखा कि वो काम कर रहे थे वहाँ पे टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में. But he was well aware of the condition of his nation. अपने नेशन के स्थिति के बारे में उनको पूरी जानकारी थी. He came back to Bangladesh. He realized that the people like me, the settled people like me, they should go back to their country because country need them. उनके देश को उनकी जरूरत है, ये इनको समझ में आया. And he came back to Bangladesh in 1972. It was a patriotic one. यहाँ पे हमें मोहम्मद यूनुस एक पैट्रियोटिक के रूप में दिखते हैं, देशभक्त के रूप में दिखते हैं. वहां पे भी जब थे, यूएस में जब थे, तो वहां पे भी अपने देश के लिए काम कर रहे थे. किस तरह से काम किया? When he was there in US, he set up Bangladesh Information Center there. वहां पे बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना की यूएस में. Isn't it? The idea behind this center was to raise the support for the liberation from other Bangladeshis in the US. US में इनके ही जैसे कुछ बांग्लादेशीज रह रहे थे. उन सब लोगों को इन्होंने कॉल किया. He raised support from them. उन सभी से सपोर्ट तैयार किया. किसके लिए? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लिए. Means living in US, he supported his country through this particular center, that is Bangladesh Information Center. He raised support for the liberation from other Bangladeshis in the US. बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए वहां से इन्होंने सपोर्ट किया अपने देश के लिए कि my country should get an independent status. It should be an independent country. He supported from US to Bangladesh. Then he came back to Bangladesh
and joined Chittagong University and as head department of economics. And 1972 में वो वापस आए फिर से बांग्लादेश में और फिर से चित्तागोंग यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी वाली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करके ज्वाइन हुए. It was again a very crucial time. बांग्लादेश का ये समय डिफिकल्ट ही था. 1971 में युद्ध प्रारंभ हुआ था, युद्ध हुआ था और 1974 में अगेन द कैलामिटी वाज देयर. कैलामिटी कौन सी थी? इट वाज द एरा ऑफ फेमाइन. फेमाइन मींस इट इज द एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जहाँ पे अन्न की कमी बहुत बुरी तरीके से महसूस होती है. देयर वर सम रीजंस फॉर सच काइंड ऑफ फेमाइन. इस फेमाइन के लिए, इस अन्न की कमी के लिए some reasons were there. What were the reasons? That flood was there, rapid growth of population was there, government mismanagement was there, then food smuggling was there, great corruption was there in Bangladesh. These were some of the reasons for this kind of famine in Bangladesh. बांग्लादेश की कंडीशन बहुत ही खराब थी. पहले ही जैसे हमने बताया कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ और वॉर से वो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी बांग्लादेश की. हर फ्रंट पे बांग्लादेश लड़ रहा था सेटल होने के लिए, लेकिन सेटल होने के लिए जो वक्त एक राष्ट्र को लगता है वो वक्त बांग्लादेश को मिल ही नहीं पाया. और जैसे खड़ा होने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा था तो उसी में 1974 में बांग्लादेश एक्सपीरियंस्ड अ ग्रेट फेमाइन. अन्न का सूखा हुआ, अन्न की कमी महसूस होने लगी. फ्लड वॉज देयर. फ्लड, ब्रह्मपुत्रा जो बहती है, उस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई 1974 में और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां पे जो गांव थे वो पानी में बह गए. एस्टिमेट्स बताते हैं, रिपोर्ट्स बताते हैं कि नियर अबाउट 4,50,000 पीपल ये बह गए पानी में. न जाने लाखों लोग पानी में बह गए, लाखों घर उद्ध्वस्त हो गए. हर तरह से रूरल एरिया तहस नहस हो गया बिकॉज ऑफ फ्लड. फ्लड आया, पानी आया, बाढ़ आई, उससे तो तहस नहस हुआ ही था, लेकिन हर जगह पे करप्शन था, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट था, गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही थी सब चीजों के लिए, isn't it? क्योंकि पहले ही ब्रिटिश राज्य करके गए थे, फिर एक इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए संभलने के लिए जो एक क्वालिटी चाहिए कि या फिर संभलने के लिए जो एक कैलिबर चाहिए वो जमा करने से पहले ही फिर से नेचुरल कैलामिटीज वेयर देयर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड. बाढ़ आई, उसमें सब तहस नहस गांव वाला एरिया हो गया. एंड बांग्लादेश एक्सपीरियंस फेमाइन इन 1974. affected the life of masses. masses माने common people. common people जो है उनका life इस बाढ़ से पूरी तरह से तहस नहस हो गया. population growth was there, rapid population growth was there. इसलिए अन्न की कमी महसूस होने लगी क्योंकि अन्न का साठा लिमिटेड था और खाने वाले जो मुंह है वो बढ़ते जा रहे थे. and that's why there was extreme scarcity of food. government mismanagement was there, corruption was there. उसमें से food grain का smuggling भी दूसरे देशों में हो रहा था. and that's why it was a very difficult time for Bangladesh. बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति थी. and naturally whatever the situation was faced by the country, it was affected by the common people. common people were affected because of this difficult condition of the country. and that's why the life of masses, the life of common people, it was also very much disturbed. the country received no aid from other countries. इस देश को मदद करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सामने नहीं आई. यूएस के साथ भी, यूएस ने भी मदद करने से मना कर दिया. it did not commit any food, it did not provide any food to Bangladesh because at that time Bangladesh had a policy to export jute to Cuba. क्यूबा को जूट सप्लाई कर रही थी बांग्लादेश, ये यूएस को पसंद नहीं आया और इसलिए यूएस ने भी ऐसी कठिन परिस्थिति में बांग्लादेश को मदद करने से इनकार कर दिया. it did not help Bangladesh in such a difficult kind of time. People in rural areas were suffered from starvation as the floods devastated food crops. रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की तो परिस्थिति पूछो मत, वो बहुत खराब हो गई क्योंकि उनके फूड जो थे, फूड क्रॉप्स जो थे, उनकी खेती जो थी, उनका अनाज जो था वो पूरा फ्लड में बह गया. बाढ़ जो आई ब्रह्मपुत्रा को, वो पूरा उनका अनाज उसमें तहस नहस हो गया, खराब हो गया, बह गया. एंड दैट्स व्हाई रूरल एरिया में जो लोग रहते थे उनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ा, उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा, खाने को अन्न नहीं मिलता था. एंड दैट्स व्हाई दे सफर्ड फ्रॉम स्टारवेशन.
स्टारवेशन का सामना इनको करना पड़ा, भूखमरी से कितने लोग मरने लगे, दैट वाज अ वेरी पैथेटिक काइंड ऑफ कंडीशन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये बहुत दुर्दैवी तरह की सिचुएशन, हर जगह पे प्रॉब्लम्स वे देयर, एंड दैट्स व्हाई इट वाज द एरा ऑफ फेमाइन, फेमाइन का एरा था। As a responsible, educated, sensitive citizen, Mr. Yunus took the initiative. इसी सब चीज में, इसी बैकग्राउंड में यूनुस, मिस्टर मोहम्मद यूनुस, he undertaken some initiatives, कुछ initiatives मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने रखे। He established a rural economic program as a research project. पढ़े लिखे तो थे ही, होशियार तो थे ही, and he wanted to do something for the sake of the society. He wanted to do something for the upliftment of the poor people, for the poor society. अपने देश के गरीबों के लिए काम करने का जज्बा भी था, टैलेंट भी था, मेहनत की तैयारी भी थी, and that's why he initiated to understand the problem first. कि इतनी सब खराब परिस्थिति मेरे बांग्लादेश में है, मेरे बांग्लादेश के लोग सब इतनी खराब परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट, उस रूट से प्रॉब्लम को खोजने की कोशिश की। ही एस्टैब्लिश अ रूरल इकोनॉमिक प्रोग्राम एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट के जरिए एक रूरल इकोनॉमिक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। ही विजिटेड द पुअरेस्ट हाउस होल्ड इन द विलेजेस, जो बाढ़ से पीड़ित गांव थे, घर थे, लोग थे, उन सभी लोगों को, गांव के कुछ लोगों को उन्होंने विजिट करना शुरू किया। ही स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद द पीपल, लोगों से बात करना शुरू किया, उन लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सो इजी। एक तो ये बहुत पढ़े लिखे थे, यूएस में रह के आए थे, एक विद्वत्ता वाली लाइफ जिए हुए थे, सेटल्ड लाइफ जिए हुए थे, उस पूरे स्थिति को छोड़ के, उस पूरे अपने कैलिबर को एक जगह पे रख के सामान्य से सामान्य व्यक्ति के स्तर तक पहुंच के उनके प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट, इट इज नॉट सो इजी। ये सब चीजें समझ के उन पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, इट वाज नॉट सो इजी, बट ही डिड इट। लेकिन उन्होंने वो किया, उन सभी गरीब लोगों के घर में जाके उनसे बात की। ही विजिटेड द पुअरेस्ट हाउस होल्ड इन द विलेज, पुअरेस्ट, पुअर भी नहीं, पुअरेस्ट, सबसे गरीब लोगों के घर में जाके उनसे बात करने की कोशिश की, उनका प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। ही विजिटेड द पुअरेस्ट हाउस होल्ड इन द विलेजेस, ही इंटरव्यूड विमेन एंड अंडरस्टूड द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। He wanted to understand the poverty. What are the reasons that poverty is there among all those people? कि क्या रूट कॉज है, क्या वजह है, क्या कारण है कि ये लोग इतनी पॉवर्टी में रहते हैं। He wanted to find out the reason behind the poverty. For that he interviewed women. विमेन के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, उनको क्वेश्चंस किए, उनको पूछा कि what is the problem you face, isn't it? He tried to understand the problem from the root. He interviewed the women. Women के साथ बात की, learned that women were being charged exorbitant rate for their loans and thus barely made profit. उनके साथ बातचीत करने के बाद, उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये पता चला कि the women were being charged exorbitant rates. Exorbitant means excessive rates for their loan. गरीब विमेन थी, ये गरीब विमेन अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मनी लेंडर्स से मनी लेती थी, साहूकारों से पैसा लेती थी। They used to lend money from the money lenders and money lenders were very selfish. They used to charge exorbitant rates for their loans because they used to behave as an opportunist. वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा करने में जुड़े हुए थे, है ना। They wanted to get more and more money and that's why they used to charge exorbitant rates, excessive rates, isn't it? हद से ज्यादा उन पे, उस लोन पे इंटरेस्ट उन पे बताते थे। ये गरीब विमेन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेती थी और जितना साहूकार बोलता था उतने लोन का इंटरेस्ट उनको देते थे और इसलिए मुद्दल तो उनकी जाती ही नहीं थी, यानी वापस दी ही नहीं जाती थी, इंटरेस्ट ही देते देते बेचारी थक जाती थी। इसलिए गरीबी के स्तर से दे कुड नॉट कम आउट फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर पीपल। पुअर पीपल का ये प्रॉब्लम, इट वाज अंडरस्टूड बाय मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ये प्रॉब्लम समझ में आया कि ये लोग सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहे हैं, जो कर्जा ले रहे हैं उस पे इंटरेस्ट ही देते देते इनकी जिंदगी बीती जा रही है ना। एंड दैट्स व्हाई दे आर क्रश्ड अंडर द हील्स ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स की इस पॉलिसी से इनका जीवन पूरी तरह से उद्ध्वस्त हुआ है। इट हैज बीन अंडरस्टूड बाय मोहम्मद यूनुस। He put forward several proposals to help the rural areas of Bangladesh. Then
जैसे पहले ही कहा, he was a very talented kind of a person. He was an economist, he was a banker. ये सब identities हमने देखे हैं मोहम्मद यूनुस के. As an economist, as a patriot, as a nationalist, उन्होंने ये सब प्रॉब्लम पे आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की. व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट फॉर देम, व्हाट कैन आई डू फॉर देम. ही स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे एंड ही पुट फॉरवर्ड सेवरल प्रपोजल्स टू हेल्प द रूरल एरियाज ऑफ बांग्लादेश. और बहुत सारे प्रपोजल तैयार किए, गवर्नमेंट को दिए कि किस तरीके से इन लोगों की पॉवर्टी, इन लोगों की गरीबी हम दूर कर सकते हैं. He put forward several proposals to help the rural areas of Bangladesh. He understood the traditional bank system. He was an economist. और इसलिए इनको आश्चर्य होता था कि बैंक सिस्टम इन लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं आती. Why bank system doesn't help these poor people? He wanted to find out the reason behind it. He realized that traditional bank was not there in the supportive role to these poor people. It was not there in the supportive role. Traditional bank structure जो है ये गरीब लोगों के लिए है ही नहीं, ये इनको realize हुआ, ये इनको समझ में आया. Because ट्रेडिशनल बैंक, हम आगे देखेंगे कि व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल बैंक. ट्रेडिशनल बैंक सेटल लोगों को ही कर्जा देती थी, सेटल लोगों को ही लोन देती थी. ऐसे लोगों को लोन देती थी कि जो लोग उस लोन को रीपे कर सके, उस लोन को वापस दे सके. गरीब लोगों के पास वापस देने के लिए जो तारण रखा जाता है वो कुछ रहता नहीं था, ना जमीन रहती थी, ना घर रहता था, ना सोना रहता था. And that's the assurance was not there to the bank that the poor person will repay the loan. And that's why the loan system at that time, traditional bank system, didn't allow the poor people to get the loan from the bank. इसलिए ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम ये पुअर लोगों को लोन देने से मना करती थी या लोन नहीं देती थी. इट डिडंट प्रिफर नहीं करती थी कि पुअर लोगों को, पुअर पीपल को, गरीबों को लोन दिया जाए. He understood the problem. ये जो प्रॉब्लम था ये मोहम्मद यूनुस ने समझा. In the pictures we can see that how he communicated with the villagers, how he interviewed the women in the village. इन छोटे पिक्चर्स में हम लोग ये देख सकते हैं कि गरीब महिलाओं के साथ, जो महिलाएं रूरल एरिया में रहती थी, विलेज एरिया में रहती थी, गांव में रहती थी, उन विमेन के साथ बात करके उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश मोहम्मद यूनुस ने की. He understood the problem and he put forward several proposals कि ये लोग गरीबी से बाहर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं. ये बहुत सारे प्रपोजल्स उन्होंने आगे किए, so that the people should come out from the poverty level. What were the initiatives? He put forward the model of microcredit. ये प्रॉब्लम समझने के बाद एक माइक्रो क्रेडिट जैसा नॉवल कंसेप्ट उन्होंने सामने लाया. नाउ व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट? माइक्रो क्रेडिट मीन्स माइक्रो लोन, छोटे छोटे लोन इन गरीबों को देना. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट कि बड़े बड़े लोन की इन गरीबों को जरूरत नहीं है, नंबर एक. और नंबर दो, इतने बड़े बड़े लोन अगर ये गरीब लोग लेंगे तो उसको रीपे नहीं कर पाएंगे. दैट वाज द प्रॉब्लम अंडरस्टूड बाय मोहम्मद यूनुस. एंड दे डोंट नीड इट. उनको बड़े लोन की जरूरत भी नहीं है, उनके छोटे छोटे लोन की जरूरत है. उनको रोजगार तैयार करने के लिए उनको छोटे छोटे भांडवल की जरूरत है, उनके रोजगार को इनिशिएट करने के लिए. दिस वाज अंडरस्टूड बाय मिस्टर मोहम्मद यूनुस एंड दैट्स व्हाई ही पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ माइक्रो क्रेडिट. एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे उन्होंने माइक्रो क्रेडिट शुरू किया. He experimented with 42 needy women. अब जब women के साथ इंटरव्यू किया, he interacted with the women in the rural area. He interviewed them. He made the list of women, and the number was 42. 42 सबसे गरीब ऐसी महिलाओं की लिस्ट इन्होंने तैयार की. And he distributed loan among those who raised profit and managed better than before. And he had at that time he had the amount of $27. आज के अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे हम 74 का शायद डॉलर है, तो इट इज नॉट मोर देन 2000 से ज्यादा ये अमाउंट नहीं है. कि ऐसे एक छोटा सा अमाउंट जो उनके पास था पैसा, ऐसा पैसा खुद के पास से इन 42 विमेन में डिस्ट्रीब्यूट किया. छोटा छोटा अमाउंट, माइक्रो क्रेडिट, हाँ, माइक्रो लोन जिसे बोलते हैं, वेरी स्मॉल लोन. ये छोटे छोटे लोन के रूप में ये छोटे छोटे अमाउंट इन्होंने इन गरीब विमेन में बांट दिए. एंड द लिस्ट वाज 42 विमेन में इन्होंने बांट दिए. ही रियलाइज दैट ही रेज प्रॉफिट. उनको जब ये छोटा छोटा माइक्रो क्रेडिट, ये छोटा माइक्रो लोन जिसे बोलते हैं ना, स्मॉल लोन्स जिसे बोलते हैं, ये जब उनको दिया तो उन विमेन ने दे यूटिलाइज्ड इट इन अ वेरी प्रॉपर वे.
उनको समझ में आया कि उन्होंने उस लोन को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया, एक रोजगार शुरू किया और कुछ दिनों के बाद वो लोन भी रिपे किया, इंटरेस्ट तो दिया लेकिन लोन भी रिपे किया एंड दे मैनेज बेटर देन बिफोर। और पहले से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। He realized this after experimenting with 42 women. Experimental with 42 needy women. This word is important, needy women, because these women, they belong to the rural area, number one, and they were needy. They were very poor women. They wanted to come out from the poverty level. जिनको इच्छा थी कि मुझे poverty level से बाहर आना है लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, ऐसे women को, ऐसे 42 women को इन्होंने कुछ amount दी. He just gave, or he just distributed 27 US dollars. He distributed among all those women, and the women started with that particular amount. The women started with that micro credit. The women started with that micro loan. छोटे से लोन से उन विमेन ने शुरुआत की। कुछ ही दिनों में जो रोजगार उन्होंने शुरू किया था, उस रोजगार की मदद से पॉवर्टी लेवल से बाहर आना उनको धीरे धीरे पॉसिबल हो। क्योंकि पॉवर्टी जब होती है किसी भी देश में, उसका रूट कॉज बेरोजगारी होता है। जब हाथ को काम नहीं दिया जाता तो पॉवर्टी होती है, और पॉवर्टी जो होती है तो नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दे आर रेज्ड ड्यू टू पॉवर्टी। और इसलिए व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, ही फाउंड आउट दैट एंड ही वांटेड टू इरेडिकेट दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट। He offered loan on small value. उसके बाद जब ये 42 needy women पे एक्सपेरिमेंट किया तो he offered loan on small value. छोटे छोटे वैल्यू के लोन से छोटे छोटे लोन बाकी नीडी लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। He offered loans of small value. The most important feature of this loan, of this microcredit, was it was charged reasonable interest rate, especially to the poor. ये लोन उन्हीं के लिए था जिनको इस लोन की जरूरत है। ये माइक्रो क्रेडिट वॉज गिवन ओनली टू द नीडी पीपल, इट वॉज ओनली ऑफर्ड टू द पुअर पीपल। पुअर पीपल को ही ऑफर किया जाता था और बहुत ही रिजनेबल इंटरेस्ट रेट के साथ। ट्रेडिशनल बैंक जो होती थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लोगों से लेती थी, ये बैंक जो था इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। These kind of loans were completely different from the traditional bank system. It charged reasonable interest rates, especially to the poor. पुअर को थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट दे के माइक्रो क्रेडिट उनको दिया गया। छोटे छोटे लोन, माइक्रो लोन्स वेयर ऑफर्ड टू द पुअर पीपल, नीडी पीपल। एस्टैब्लिश अ वायबल बिजनेस मॉडल विथ माइक्रो क्रेडिट। धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ाते गए and it established a viable business. Viable means viable, that is called as practical, or we can call it feasible, जिसको बोलते हैं व्यवहार्य business model, कि जो model it is applicable to all on one hand and it is beneficial to all the people on the other hand. एक तो सबके लिए applicable भी हो और दूसरा सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसा एक business model which is very viable but is very practical. It was started by Muhammad Yunus. And the base of this particular model, it was microcredit. This word you have to keep in your mind, because whatever he has done, it is possible because of this microcredit system. It was because of this micro loan system. Micro loan, microcredit माने छोटे loan जो उन्होंने दिए, small loans which were given by him. That is called as माइक्रो क्रेडिट। छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे क्रेडिट, छोटे छोटे कर्जे जो लोगों को दिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति को 1 लाख का कर्जा सबको अगर बैंक देगी तो बैंक तो डूबी जाएगी। इसलिए जरूरत उनको जितनी है और वो अगर रीपे नहीं कर पाए तो बैंक डूब जाएगी, है ना। इसलिए उनको जरूरत ही लोन दो, 500 रुपए, 1000 रुपए की, जिससे उनका रोजगार वो शुरू कर सके। जस्ट माइक्रो क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम, माइक्रो लोन शुड बी गिवन टू देम, सो दैट विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट दे कैन स्टार्ट विद देयर स्मॉल बिजनेस। अपना छोटा सा बिजनेस वो शुरू कर सके, अपना छोटा सा रोजगार वो शुरू कर सके, सेटल हो सके, एंड देन विथ रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे कैन रीपे द लोन ना, कि रिजनेबल इंटरेस्ट अगर उनको दो तो इंटरेस्ट के साथ वो लोन भी रीपे कर सकेंगे। इस कंसेप्ट के साथ he started with micro credit. He provided a chance to those who had nothing, because basically this work was done for the people in rural area, the people who needed it a lot. ये एक्सपेरिमेंट उन्हीं लोगों के लिए किया गया कि जो लोगों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिनके पास कुछ था ही नहीं, जिनके पास रोजगार ही नहीं था, जिनके पास पैसा नहीं था, और दैट्स व्हाई दे वेर इन दैट पॉवर्टी लेवल, एंड दैट्स व्हाई इट वाज
for those people, and that's why chance was provided, an opportunity was provided for those people who were in need, who had nothing, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ऐसे लोगों के लिए ये opportunity दी गई. He applied for a loan from the government Janata Bank. अब खुद के पास जो पैसा था वो तो दिया, it was distributed among the people, लेकिन इससे भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी. इसलिए पैसा तो चाहिए था लोगों को देने के लिए, छोटा मोटा इंटरेस्ट भी वो देते थे और लोन भी रिपे करते थे, लेकिन और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ज्यादा पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए ही नीडेड मनी, उनको पैसे जरूरी थे. और दैट्स व्हाई ही अप्लाइड फॉर अ लोन टू द गवर्नमेंट जनता बैंक. गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए, इट वाज सैंक्शन, उनका लोन सैंक्शन हुआ, एंड he received the loan and set to work. He received the loan and set to work. शुरू किया काम. It was there in 1976. ये काम जब शुरू किया तो 1976 में इन्होंने काम शुरू किया. He received the loan from the Janata Bank and he set to work in 1976. काम शुरू किया, काम नया था, एक्सपेरिमेंटल था. कोई भी चीज जब आप प्रायोगिक स्तर पे शुरू करते हैं, उसको पहली बार करके देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. मोहम्मद यूनुस faced each and every problem. He fought against each and every calamity. He fought against each and every adversity. हर प्रतिकूल के साथ संघर्ष किया. He provided alternative to traditional bank system. और ये सब करते समय he encountered with the problem and found out the remedies. Remedies माने उपाय, उन चीजों पे उपाय, solutions उन्होंने निकाले. एक अल्टरनेटिव सिस्टम शुरू किया. ट्रेडिशनल बैंक को जो अल्टरनेटिव सिस्टम था, पैरेलल सिस्टम शुरू किया. द पुअर पीपल व्हेन दे कैन नॉट गेट लोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक, दे हैव अनदर ऑप्शन ओपन टू देम. एक नया ऑप्शन उनके लिए ओपन किया कि यू कैन ट्राई विद द माइक्रो क्रेडिट. हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए और माइक्रो क्रेडिट ट्राई करिए. आप 500, 1000, 2000 इतना ही लोन लीजिए, उस पे इंटरेस्ट भरिए एंड just start with your business. This opportunity was open to them. This door was open to them. And that's why in this way he provided alternative to traditional bank system. एक बैंक सिस्टम को parallel एक सिस्टम शुरू की, that was for the benefit of the poor people. That was for the benefit of the needy people. Expanded membership. धीरे धीरे उसको इतना सक्सेस मिला कि in 1976 he started. 1976 में इन्होंने स्टार्ट किया माइक्रो क्रेडिट से. तो 92 आते आते द इंस्टीट्यूशन हैड एक्सपांडेड टू 28,000 मेंबर्स. एक्सपेरिमेंटल बेस पे लिए थे 42 विमेन, है ना, 42 विमेन से शुरू किया था एक्सपेरिमेंटल बेस पे 1976 के आसपास. और ये 1982 तक आते आते इट एक्सपांडेड इट्स मेंबरशिप अप टू 28,000. 28,000 मेंबर्स बढ़ने तक. ये 28,000 आंकड़ा ही ये बताता है कि इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द रूरल पीपल. इट वाज हाईली बेनिफिशियल फॉर द रूरल पीपल. रूरल पीपल को जब ये पता चला कि अरे इट इज वेरी एडवांटेजियस, इट इज फॉर वी, इट इज फॉर आवर प्रोग्रेस, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो दे स्टार्टेड गेटिंग मेंबरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन. इस इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप लेने में वो इंटरेस्टेड भी थे, लोन भी लेते थे. छोटा छोटा जो रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था वो भी देते थे. एंड अलॉन्ग विद दैट उन पे जो लिया हुआ कर्जा था वो कर्जा भी चुकता करते थे. सो इट गॉट ग्रेजुअली इट गॉट गुड सक्सेस टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद यूनुस. एक्सपांडेड मेंबरशिप with 28,000 members in 1982. Then it progressed from an institution to fully fledged bank. It was really a very good success he received कि एक institution को एक fully fledged bank का दर्जा मिला. And it was with the shaping up of ग्रामीण बैंक. यही ग्रामीण बैंक है. इस मॉडल पे तैयार हुई, माइक्रो क्रेडिट पे, माइक्रो क्रेडिट के मॉडल पे, माइक्रो फाइनेंस के मॉडल पे, माइक्रो लोन के मॉडल पे खड़ी हुई ग्रामीण बैंक. इट वाज जस्ट द फर्स्ट सक्सेस अचीव्ड बाय मोहम्मद यूनुस. ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई. इसी को विलेज बैंक भी बोला जाता है. ग्रामीण बैंक इज ऑल्सो नोन एज ए विलेज बैंक.
it is a village bank. The very title signifies, or the very title indicates that this bank is for the poor people. This bank is for the rural people. This bank is for the people who live in the village area. विलेज एरिया में रहने वाले गरीब लोगों के लिए ये बैंक चलाया गया मोहम्मद यूनुस के मॉडल से. एंड दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट द शेपिंग अप ऑफ ग्रामीण बैंक, विलेज बैंक. इतना 1976 के 42 विमेन से लेके 1982 के 28,000 मेंबर्स तक का जो जर्नी था, इट वाज जस्ट अ स्पैन ऑफ विद इन 6 years. 6 साल का जो जर्नी था, इट वाज नॉट सो इजी. कोई भी जीरो से लेके समाज के लिए काम किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, इनिशिएटिव लेके, एंथुजियास्टिकली, विद ग्रेट पैट्रियोटिक फेवर. इट इज नॉट सो इजी. कि बांग्लादेश जैसे पुअर कंट्री, उस वक्त बांग्लादेश का स्टेटस पुअर कंट्री ही था, बिकॉज एज वी हैव सीन दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स वेयर देयर फेस्ड बाय बांग्लादेश एज अ कंट्री. एक कंट्री के नाते बहुत सारे प्रॉब्लम्स बांग्लादेश फेस करी थी. ऐसे बैकग्राउंड में गरीबों के लिए खड़ा होना और एक मॉडल सक्सेसफुल करके दिखाना, it was not easy. It was not so it was not a joke. It was really a very great work which was done by. It needs great patience, it needs consistency, it needs patriotism. बहुत सारी चीजें लगती है ऐसी चीजों के करने के लिए, कि अपने देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, है ना, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसको बोला जाता है चिकाटी, परसिवरेंस होना चाहिए. कि बहुत बार बहुत सारे सेटबैक्स आपको आते हैं, बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारी एडवर्सिटीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस ध्येय तक जाना, इट इज नॉट सो इजी, बट ही डिड इट. लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ये किया. आगे जाके हम देखेंगे कि इतना सब करने के बाद हाउ ही वाज अवार्डेड. जब पहली स्लाइड में हमने, सेकंड स्लाइड में हमने देखा कि ही वाज ऑनर्ड विद सो मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस विद रैंकिंग्स, है ना, विद वोट्स एंड रैंकिंग एंड ऑल, ये सब उनको मिला. ये सब जो किया है उसका नतीजा है कि इसलिए टाइम मैगजीन जैसे, यूके यूएस जैसे एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ने भी उनको टॉप लीडर्स में से बड़ा स्थान दिया. इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, isn't it? While doing all these things, he faced some setbacks also. कुछ setbacks भी feel किए. ये setbacks कौन से थे? As it is said to you, it is not so easy. कोई नई चीज जब नई पहल की जाती है समाज में, नया कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो बहुत सारी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है. बहुत सारे उसको थ्रेटनिंग्स रहते हैं, कंजर्वेटिव सोसाइटी उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती. सो दीज सेटबैक्स वेर एक्सपीरियंस्ड बाय मोहम्मद यूनुस आल्सो. मोहम्मद यूनुस ने भी ये सेटबैक्स एक्सपीरियंस किए, है ना. ही वाज थ्रेटन्ड फ्रॉम द रेडिकल लेफ्टिस्ट. उस वक्त जो उस बांग्लादेशी देश में उग्रवादी थे या उग्र वामपंथी लोग थे, लेफ्टिस्ट, रेडिकल लेफ्टिस्ट जो थे, उनको ये चीजें पसंद नहीं आई. दे वर नॉट in a supportive role, and that's why they threatened to Muhammad Yunus and his colleagues also. उनके colleagues को threaten, मोहम्मद यूनुस को threaten किए, धमकी दिए कि you should not begin with this, you should not do this anymore, ये आप करिए मत, आप ये रोक दीजिए, like that. They threatened Muhammad Yunus and his colleagues. Then conservative clergies were there. Conservative, traditional, रूढ़िवादी, परंपरावादी क्लर्जी यानी धर्मगुरु थे, कि जिनको भी ये अप्रोच पसंद नहीं आया. एंड दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव क्लर्जीज आल्सो कॉशन्ड विमेन फ्रॉम बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक. उन्होंने क्या किया, इन गांव के विमेन को ये बैंक से लोन नहीं लेना है, ये करके कॉशन किया, बैंक में मत जाइए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है. इस तरह से विमेन को भी टारगेट करने की कोशिश की, है ना. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज सेटबैक्स, द कंपनी कंटिन्यूड टू ग्रो. इस सभी सेटबैक्स के बावजूद मोहम्मद यूनुस रुके नहीं. ना उनकी ग्रामीण बैंक रुकी, ना उनकी विलेज बैंक रुकी, ना उनका माइक्रो क्रेडिट वाला सिस्टम रुक गया. इट जस्ट कंटिन्यूड डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज सेटबैक्स. These are the basic differences between ग्रामीण बैंक एंड कन्वेंशनल बैंक. जो ट्रेडिशनल बैंक बांग्लादेश में थे, उस बैंक के फीचर्स, एंड these are the chief features of the ग्रामीण बैंक. Conventional bank, it focused to make on profit. It based on collateral. Collateral means जिसे बोलते हैं ना कि दुय्यम, या जिसे बोलते हैं पार्शियल थे, कि जो अमीरों को ही लोन दिया करते थे, गरीबों को लोन देने के फेवर में नहीं थे. क्योंकि अमीर जो रहते थे उनके पास तारण रहता था कुछ कि 1 लाख का कर्जा तुमने लिया तो उसके बदले में तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखो, ये दे सकते थे. इसलिए उनके पास से रीपे का एश्योरेंस रहता था, कि जो गरीब लोगों के पास में नहीं रहता था. एंड दैट्स व्हाई द कन्वेंशनल बैंक सिस्टम, इट वाज बेस्ड ऑन कोलैटरल. इट लुक्स एट व्हाट द बोरोर ऑलरेडी हैज,
है ना. It was located in the urban area. कन्वेंशनल बैंक के स्ट्रक्चर्स जो थे, इट वाज फॉर द अर्बन एरिया के लिए, सिविल एरिया के लिए ही वो दिए जाते थे. कस्टमर्स हैव टू गो टू द बैंक. अगर लोन चाहिए तो कस्टमर को जाना पड़ता था बैंक में फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, लोन लेने के लिए. स्ट्रिक्ट पेमेंट स्कीम्स वेयर देयर. इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट भी देना पड़ता था और मुद्दल भी देना पड़ता था. स्ट्रिक्ट पेमेंट स्कीम वाज देयर व्हिच वाज अप्लाइड बाय द कन्वेंशनल बैंक. मोस्ट ओनर्स एंड बोरोवर्स वेर वेल्दी मैन, कि जिनको लोन की जरूरत नहीं होती थी, है ना. लेकिन गरीबों को जिनको लोन की जरूरत होती है, उनके लिए कन्वेंशनल बैंक के दरवाजे खुले नहीं रहते थे उस वक्त. लोन्स कुड बी यूज फॉर कंजम्पशन और अदर एक्टिविटीज. इसलिए लोन का उपयोग कंजम्पशन के लिए, संचय के लिए किया जाता था, या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए, लग्जरी के लिए किया जाता था. दीज वेर द चीफ फीचर्स ऑफ कन्वेंशनल बैंक. इसलिए कन्वेंशनल बैंक को मोहम्मद यूनुस ने पैरेलल बैंक, ग्रामीण बैंक के रूप में एक अल्टरनेटिव दिया. Isn't it? These are the chief features of Grameen Bank, to bring economic and social change to the poor. Social change, poor लोगों के लिए एक change होना चाहिए, so that they will get an opportunity to come out from the poverty level. This opportunity was provided by Grameen Bank. It was based on trust. कि कोई तारण नहीं चाहिए अगेंस्ट में आप आपकी प्रॉपर्टी रखो, आपका घर, आपका बंगला, आपका गाड़ी ये रखो. This was not the case. It was based on trust. है ना. And this trust was followed by the rural people also. This was the speciality of this Grameen Bank. ये trust पे जो Grameen Bank शुरू हुई थी, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों ने उस ट्रस्ट को संभाला, है ना. They repaid the loan along with the reasonable interest charges of reasonable interest charges. It looks at what the borrower can have. Located in the rural area. ये हमने पहले ही देखा है कि ग्रामीण बैंक, the very title or the very name, it indicates that it is for the Grameen people, it is for the rural people. It was located in the rural areas. The bank goes to the customer. बैंक ही जाती थी कस्टमर के पास कि you need some money, you can take it from us. It goes to the customer. Flexible payment scheme was there. Most owners and borrowers were poor women. इसका सबसे फायदा अगर किसको मिला था तो रूरल एरिया में रहने वाले विमेन को इसका फायदा दिया गया. Isn't it? Loans are for productive activity, not for consumption. इस लोन की स्पेशलिटी ये थी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, इट वाज फॉर द कंस्ट्रक्शन, इट वाज फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस, इट वाज फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल, एंड दैट वाज द चीफ फीचर ऑफ द ग्रामीण बैंक. After establishing, it started investing in different fields, different other fields. ग्रामीण बैंक ये एक बार उस हाइट तक पहुंचने के बाद अलग अलग फील्ड्स में उनका विस्तार हुआ. It started investing in the irrigation schemes. Irrigation schemes जिसको बोलते हैं सिंचन प्रकल्प की, जिसमें जमीन को पानी का सप्लाई करने के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया. Equity projects means in the field of fair judgment, the Grameen Bank initiated. It work in telecommunication माने दूर संचार वाले विभागों में कार्य करना शुरू किया ग्रामीण क्षेत्र में, कि जहाँ पे it work in the field of computer network, telephone network, etc. It supplied phone to the poor people. बहुत सारे पुअर पीपल को, गरीबों को फोन का सप्लाई करने का काम ग्रामीण बैंक ने किया. एंड द रिकॉर्ड्स इन योर टेक्स्ट इट इज मेंशन्ड दैट इट सप्लाइड 250,000 phones across 50,000 villages. 50,000 villages में 250,000 phones माने 2,50,000 के आसपास फोन का वितरण किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल. उन पुअर पीपल को एडवांस लाइफ से वो जुड़ सके, इसलिए इतने फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए किया गया. इट एंश्योर रीपेमेंट ऑफ लोन थ्रू सॉलिडेटरी ग्रुप. लेकिन कभी कभी ये होता था कि गरीब इंडिविजुअल वो रीपे नहीं कर सकता था. लोन जो लिया, छोटा सा भी लोन लिया 2,000 का, तो उसकी कैपेसिटी वो नहीं रहती थी कि वो रीपे कर सके. तो ऐसी कंडीशन में वो लोन डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट वाज द बेस ऑफ द बैंक. कोई भी बैंक का बेस होता है ना कि लोन अगर रीपे लोग करेंगे तो ही बैंक टिक पाएगी, अगर लोन डुबाएंगे तो बैंक टिक नहीं पाएंगे. इसलिए रीपेमेंट ऑफ लोन इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन अ बैंक. और कभी कभी व्यक्ति इतना गरीब होता था कि वो रीपेमेंट नहीं दे पाता था, लोन वापस नहीं दे पाता था. तो ऐसे कंडीशन में दिस ग्रुप वाज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिडेटरी ग्रुप, कि छोटे छोटे गरीबों के ग्रुप्स बनाए गए कि तुम इस डेट को ये लोन अगर रीपे नहीं कर पाए तो द अदर मेंबर इन द ग्रुप ही विल सपोर्ट हिम टू रीपे द लोन, और फिर उसके सुविधा के अनुसार ही विल गिव दैट अमाउंट टू हिज फ्रेंड. इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए
सपोर्टिव रोल में, इसलिए लोन डूबने का चांस ग्रामीण बैंक में था ही नहीं। एक तो ट्रस्ट को बहुत लोगों ने जागा, और दूसरा दिस सॉलिडेटरी ग्रुप इट सपोर्टेड द लोन ऑफ द, it supported the system of the Grameen Bank. It targeted women empowerment. आज हम women empowerment की, महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं, उस वक्त यही टारगेट मोहम्मद यूनुस ने रखा कि गांव की विमेन को समृद्ध करना है, उनको सक्षम करना है। वो अगर सक्षम होंगे तो फैमिली विल बी the family will come out from the poverty level, and that's why 95% of the Grameen loans were given to women. जितने लोन डिस्ट्रीब्यूट ग्रामीण बैंक ने किए उसमें से 95% लोन जो थे वो विमेन को दिए गए, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड दैट द विमेन दे अफेक्ट मोर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और वो बहुत ऑनेस्टली इस लोन का उपयोग करके इस लोन को रीपे करते, इस लोन के इंटरेस्ट भी भरते थे, और इसलिए ये रिकॉर्ड ग्रामीण बैंक का है कि 95% ऑफ द ग्रामीण लोन्स वेयर गिवन टू विमेन। इट एलिवेटेड पॉवर्टी। पॉवर्टी से बाहर आने का एक अच्छा सुनहरा मौका मोहम्मद यूनुस ने लोगों को दिया, बांग्लादेश के रूरल लोगों को दिया, एंड दैट्स व्हाई इट एलिवेटेड पॉवर्टी। पॉवर्टी से बाहर इट हेल्प देम टू अपलिफ्ट फ्रॉम द पॉवर्टी। पॉवर्टी से ऊपर उठने के लिए उनका मौका दिया गया ग्रामीण बैंक की मदद से। This is a very inspirational thought by Mohammad Yunus, where he says we have a lot of science fiction कि विज्ञान के जगत में इमेजिनरी कथाएं, इमेजिनरी नॉवेल्स हम बहुत लिखते हैं, हमने बहुत लिखे, हमने बहुत पढ़े। नाउ वी शुड राइट सोशल फिक्शन। ऐसे कुछ इमेजिनरी लगने वाली कथाएं जो दैट कैन एग्जिस्ट ऑन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ऐसे लिखने का मौका हमें मिलना चाहिए, हमने वो लेना चाहिए, एंड वी यूज अवर इमेजिनेशंस एंड मेक इट हैपन। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, टू राइट द सोशल फिक्शन इज नॉट इम्पॉसिबल, just we should try, we should use it happen, we should try our level best to make it happen. Because of all these things, these very prestigious awards were given to Mohammad Yunus. He was given Ramon Magsaysay Award. ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। It is given for the courageous service to the society. समाज के लिए courageous काम करने वाले व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। Ramon Magsaysay Award. It was given to him in 1984. He was given Independence Day Award by the government of Bangladesh. बांग्लादेश के सरकार ने इनको Independence Award के सम्मान से नवाजा। He was given Aga Khan Award for Architecture in 1989. He was given International Simon Bolivar Award in 1996. This International Simon Bolivar Award, it is sponsored by the government of Venezuela. He was given Gandhi Peace Prize. It was given to him by the government of India. Volvo Environment Prize. It was given to him in 2003. The highest award, that is Nobel Prize, Nobel Peace Award, was given to him in 2006. Presidential Medal of Freedom, it was also given to him. It was bestowed by the President of United States of America. आप अगर ये अवार्ड्स को देखेंगे तो आपको आपके ध्यान में आएगा कि बांग्लादेश के अवार्ड से ही इनको नवाजा नहीं गया, तो अलग अलग देशों ने, यानी वेनेजुला, देन यूएस, यूके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग देशों ने इनके कार्य का सम्मान इतने बड़े बड़े सम्मानों से किया, इतने बड़े बड़े अवार्ड से किया। यानी हमें पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क, व्हाट अ नोटेबल वर्क व्हिच वाज डन बाय मोहम्मद यूनुस फॉर द सेक ऑफ बांग्लादेश। इफ यू सी द पिक्चर्स यू कैन सी Barack Obama is there, and all the other dignitaries from other countries, they are offering or they are giving award to Mohammad Yunus for his very remarkable work. These are the chief beliefs of Mohammad Yunus, where he says poverty does not belong in civilized human society. Its proper place is in a museum. These thoughts are taken from the internet, where he says that म्यूजियम में वही चीजें रखी जाती है जो आउटडेटेड हो। पॉवर्टी आउटडेटेड होनी चाहिए और उसकी जगह म्यूजियम में ही होनी चाहिए। इट इज नॉट फिट टू बी इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में इसका काम नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी होनी नहीं चाहिए, ना ही बांग्लादेश में, ना ही जग में। But this thought, the same kind of thought, it is continued with second quote where he says, poverty is not created by poor people. It is produced by our failure to create institutions to support human capabilities. The poor themselves can create poverty-free world. All we have to do is to free them from the chains that we have to put around them. These are all the inspirational quotes from Mohammad Yunus. This is the last sentence where your text, your lesson comes to an end. Yunus and Grameen's method
and practices are now applied in projects in over 60 countries across the world, including the US and Europe. जो काम मोहम्मद यूनुस ने किया वो सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं था. He brought revolution in economics. He introduced a new economic culture. एक नया economic culture मोहम्मद यूनुस ने introduce किया. It was not limited to Bangladesh. It crossed the boundaries of Bangladesh and it was applied, it was accepted, it was applied, it was implemented in across the world, including US and Europe. And then about 60 countries ने इनके माइक्रो क्रेडिट वाला मॉडल अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया और उसके फायदे भी उन कंट्रीज को देखने के लिए मिले. यूरोप, यूएस जैसे एडवांस माने जाने वाले कंट्रीज ने भी इनको एक्सेप्ट किया और वो मॉडल सक्सेसफुल करके दिखाया. Isn't it? It is clear that he has a marked impact on Bangladesh on the world. बांग्लादेश जैसे छोटे से देश से बिलोंग होते हुए भी वर्ल्ड मार्क उन्होंने अपने नाम का तैयार किया. Now we must get an inspiration from Muhammad Yunus, but when we have to prepare this lesson from examination point of view, we have to prepare this lesson from these aspects. That these questions can be asked that explain how Yunus applied microcredit to help the poor. Then it can be asked what Yunus doing during the Bangladesh Liberation War and how it affected him. How did Grameen Bank help the impoverished women of Bangladesh and the bank focus on the women of Bangladesh? How is the story behind Yunus' first loan? Describe the various roles Yunus took on after setting up Grameen Bank. Trace the history of Grameen Bank and what led to its formation and how did it develop over the years. From these areas, the questions can be asked. I'm thankful to all the dear students for their enthusiastic response to this course. Thank you so much. Thank you, Madhvi. That was indeed a fantastic explanation. And you dealt with all the aspects in detail. And I think the students have really enjoyed. They have given in the chat box, they have appreciated your way of explanation. And we all enjoyed. And that was indeed a very inspiring example. Muhammad Yunus is an inspiring example. And we all really enjoyed the lesson. Thank you very much. And we look forward to have another interesting session with you in future. Thank you, Dr. Madhvi Moril. And dear students, I'm going to send the objective type questions to you. Please solve the quiz and also fill the feedback form. And tomorrow we'll meet with another interesting session with another expert in English from RTM Nagpur University. So till then, goodbye and happy learning.